Hello, my dear students. Welcome in our today's class. In last lecture, we had started the new chapter chemical kinetics. लास्ट पीरियड में बेटा हमने नया चैप्टर स्टार्ट किए थे केमिकल काइनेटिक्स. So chemical kinetics, it is the branch of chemistry which involve the study of rate of reaction, factors affecting on rate of reaction and mechanism of reaction. That branch is called as chemical kinetics. Then after we had completed three types of reaction, that is the faster reaction, slower reaction and finally moderate reaction. After the completion of types of reaction, we had completed the rate of reaction. What is rate of reaction? The change in concentration of reactant or product with respect to time. तो बेटे किसी भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होता, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होता विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के लिहाज से, तो बेटा उसे बोलते हैं हम रेट ऑफ रिएक्शन. और द डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एज रेट ऑफ रिएक्शन. याद आया ना बेटा? कल मैंने 3 एग्जाम्पल बताया था जनरल, याद होगा आपको. देखो इधर A gives rise to B, इसका बेटे रेट ऑफ रिएक्शन. फिर A plus 3B gives rise to 2C, इसका बेटा रेट ऑफ रिएक्शन. और बेटा तीसरा स्मॉल a कैपिटल A प्लस स्मॉल b कैपिटल B gives rise to स्मॉल c कैपिटल C प्लस स्मॉल d कैपिटल D. अब बेटा ये तीनों का रेट ऑफ रिएक्शन बता दिया था ना. अब अपन स्पेसिफिक एग्जांपल स्टडी करेंगे. राइट, चलिए फर्स्ट एग्जांपल. N2 गैस प्लस 3H2 गैस gives rise to 2NH3. So 1 mole of nitrogen react with 3 moles of hydrogen gives rise to 2 moles of ammonia. तो बेटे नाइट्रोजन का 1 मोल कंबाइन हो रहा बेटे हाइड्रोजन के 2 मोल के साथ और फॉर्म कर रहा बेटा अमोनिया के 2 मॉलिक्यूल. नाइट्रोजन का 1 मोल, हाइड्रोजन के बेटा 3 मोल कंबाइन हो रहे बेटा और वो बन रहा 2NH3. अब बेटा इस रिएक्शन में concentration of nitrogen and concentration of hydrogen is decreases and concentration of ammonia is increases. Now decrease in concentration denoted by negative sign and increase in concentration denoted by positive sign. और बेटे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल लिखते हैं हम डिवाइड में. तो बेटा फिर क्या हो जाएगा? रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू माइनस डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH3 डिवाइडेड बाय dt. अब बेटा इसको रीड कैसा करेंगे? डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. ये माइनस बेटे साइन इंडिकेट करेगा डिक्रीज. दैट इज इक्वल टू माइनस 1/3 डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 डिवाइडेड बाय dt. Right, so 1/3 decrease in concentration of hydrogen with respect to time. That is equal to, अब बेटे अमोनिया के 2 मॉलिक्यूल है ना, so 1/2 plus 1/2 d concentration of ammonia divided by dt. So in this way, a rate of reaction for this reaction is given. Right? चलिए second one. CH3Br plus NaOH gives rise to CH3OH plus NaBr. Methyl bromide react with sodium hydroxide gives rise to methyl alcohol and sodium bromide. तो बेटा मिथाइल ब्रोमाइड बेटे रिएक्ट कर रहा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ
फॉर्म हो रहा बेटा मिथाइल अल्कोहल और सोडियम ब्रोमाइड। अब बेटा सब के एक एक मॉलिक्यूल है ना। चलो तो अब बेटा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मिथाइल ब्रोमाइड एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NaOH इज डिक्रीजेस एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मिथाइल अल्कोहल एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NaBr is increases, right? So for this reaction, rate of reaction is given as rate of reaction is equal to minus, right, D concentration of CH3Br divided by dt, means decrease in concentration of methyl bromide with respect to time, that is equal to minus D concentration of NaOH divided by dt, means decrease in concentration of NaOH with respect to time, that is equal to plus। अब बेटे यहाँ प्लस क्यों ले रहे? बिकॉज इट इज प्रोडक्ट एंड वी नो दैट concentration of product is increases, so plus D concentration of CH3OH divided by dt, increase in concentration of methyl alcohol with respect to time, that is equal to plus D concentration of NaBr divided by dt, means increase in concentration of sodium bromide with respect to time. Okay, so in this way rate of reaction is given for this reaction. Now the last example, आगे बेटा और ऐसे कई सारे एग्जाम्पल आते ही रहेंगे, ठीक है। चलिए H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड undergoes decomposition to form the water and oxygen। हाइड्रोजन परऑक्साइड का बेटा डिकम्पोजिशन हो रहा और बेटे क्या फॉर्म कर रहा वो? वाटर एंड ऑक्सीजन, राइट। अब बेटे हाइड्रोजन परऑक्साइड इट इज एन रिएक्टेंट, वाटर एंड ऑक्सीजन इट इज एन प्रोडक्ट, देयरफॉर रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू माइनस डी concentration of H2O2 divided by dt, decrease in concentration of hydrogen peroxide with respect to time, that is equal to plus D concentration of H2O with respect to time, increase in concentration of water with respect to time। अब बेटे ऑक्सीजन के हाफ मॉलिक्यूल है ना, हाँ, तो 1/1/2 1 लेते ना हम, तो ये बेटा 1/1/2। अब बेटा 1/1/2 मीन्स ऊपर जाके 2 हो जाएगा ना, हाँ, तो बेटा डेट इज इक्वल टू +2 D concentration of O2 with respect to dt, right? So increase in concentration of oxygen with respect to time. So in this way a rate of reaction is given for every reaction। इस तरह बेटा हम हर रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन लिख सकते। समझा यहां तक? कोई बेटा डिफिकल्टी यहां तक? नाउ लेट्स कंटिन्यू आवर टॉपिक। नाउ वी विल स्टडी टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। नाउ राइट हेडिंग टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। अब बेटा रेट ऑफ रिएक्शन के टाइप्स स्टडी करना है, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक दैट इज द टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। अब बेटे रेट ऑफ रिएक्शन के टाइप्स स्टडी करना है। व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन? इट इज द डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और इंक्रीज इन concentration of product with respect to time, that is called rate of reaction. Now this rate of reaction is classified into two types, or there are the two types of rate of reaction। बेटा rate of reaction के बेटा दो टाइप है, right? One is called average rate of reaction, एक को बेटा क्या बोलते हैं बेटा? average rate of reaction। Second one is instantaneous rate of reaction। average rate of reaction, instantaneous rate of reaction, ये बेटा दोनों 2 मार्क के क्वेश्चन है। एक्सप्लेन एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन फॉर 2 मार्क्स
explain instantaneous rate of reaction for 2 mass. Now the name itself indicate its meaning, average. बात समझ आ रही ना? हाँ, so average rate of reaction, it is a change in concentration of reactant or product in a specific interval of time. बेटा एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जो बेटे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रहा, अगर बेटा रिएक्टेंट है तो उसका कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगा और बेटा प्रोडक्ट है तो उसका कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगा. सो दैट चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन अ स्पेसिफिक इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड एज एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन. राइट. अब बेटा मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं, आपको पसंद आएगी. देखिए, सपोज करो आपका बेटे 10th का परसेंटेज जो है 75% है. कितना है? 75 सपोज. तो क्या बेटे आपको हर सब्जेक्ट में 75 मार्क्स है क्या? नहीं ना बेटा, किसी में 75 से ज्यादा होंगे, 80 होंगे, 85 होंगे, 90 होंगे. किसी में बेटा 75 से कम होंगे, 70 होंगे, 65 होंगे, 60 होंगे, 55 होंगे, है ना. मगर बेटे क्या निकाले अपन ने? एवरेज निकाले. एवरेज सबको मिला के बेटा उसका एवरेज निकाले. वैसे बेटे सपोज करो 200 किलोमीटर का डिस्टेंस है. सपोज करो यहां से औरंगाबाद जाना है हमको, फ्रॉम परभनी टू औरंगाबाद. देर इज एन डिस्टेंस ऑफ 200 किलोमीटर. अब बेटे 200 किलोमीटर का डिस्टेंस है. राइट. अब बेटा बाइक पे जाने के लिए 4 घंटे लगते. तो डिस्टेंस कितना? 200 किलोमीटर. टाइम कितना लग रहा है बेटा? 4 आवर्स. थोड़ा व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ बाइक? थोड़ा बाइक की एवरेज स्पीड कितनी हुई? 50 किलोमीटर पर आवर. 50 किलोमीटर 1 घंटे में, बराबर ना. तो क्या बेटा हर घंटे में 50 किलोमीटर ही गए होंगे क्या? जहां बेटा ट्रैफिक नहीं होगा वहां पे 50 किलोमीटर से ज्यादा गए होंगे. जहां बेटे ट्रैफिक होगा वहां 50 किलोमीटर से कम गए होंगे. मगर अपन यहां क्या निकाल रहे? एवरेज निकाल रहे. एवरेज. वैसा बेटे रेट ऑफ रिएक्शन में भी क्या करते बेटा? एवरेज निकालते. सो द चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन अ स्पेसिफिक इंटरवल ऑफ टाइम is called as average rate of reaction. तो बेटा एक पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम में जो कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रहा रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का, अगर बेटा रिएक्टेंट है तो उसका कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगा, प्रोडक्ट है तो उसका कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगा. दैट रेट ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन. चलिए अपन एक ग्राफ प्लॉट करेंगे. नाउ सपोज ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन द टाइम एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. ये है बेटा एक्स एक्सिस, ये है बेटा वाई एक्सिस. एक्स और वाई, इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, है ना. अब बेटे यहां पे एक्स एक्सिस पे लिए हमने टाइम और बेटा वाई एक्सिस पे लिए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. एक्स एक्सिस पे क्या लिए बेटा? टाइम और बेटा वाई एक्सिस पे लिए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. अब बेटे स्टार्टिंग में रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन हाइयर रहेगा रिएक्शन शुरू होने से पहले. अब बेटे रिएक्शन शुरू होने से पहले मतलब टाइम 0. अब बेटे टाइम 0 तो बेटा कॉन्सेंट्रेशन हाइयर. एंड एज द टाइम इज पासेस, जैसा जैसा बेटे टाइम बढ़ेगा देन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डिक्रीजेस. बेटे रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन बेटा क्या होगा? डिक्रीज होगा. तो लाइन कहां से कहां आएगी? ऊपर से नीचे आएगी ना. ये देखो ये बेटा ऊपर से नीचे लाइन आ रही. इट इज द डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन. और बेटा प्रोडक्ट की लाइन कैसे जाएगी? ऐसा बेटा ऊपर. ये रहेगा बेटा प्रोडक्ट के लिए, होगा ना ऐसा. ये रिएक्टेंट के लिए और बेटा ये प्रोडक्ट के लिए.
So graph is plotted between the time and concentration of reactant. तो बेटा ये x एक्सिस के ऊपर टाइम, ये बेटा y एक्सिस पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. अब बेटा मैंने ये कॉन्सेंट्रेशन लाइन पे एक पॉइंट लिया. सपोज इट इज द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन x1. ये बेटा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है x1. तो बेटा इसका टाइम पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो. तो ये होगा बेटा इनिशियल टाइम t1. इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन x1, इनिशियल टाइम t1. दिखाई दिया. चलिए सेकंड पॉइंट. अब बेटे यहां पे दूसरा पॉइंट लिए. ये बेटा फाइनल कॉन्सेंट्रेशन x2. तो बेटे इसका टाइम रहेगा t2. x2 तो बेटा ये टाइम t2. अब बेटा ये जो स्पेस गैप दिखाई दे रहा ना, इट इज कॉल्ड एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन. दिखाई दे रहा. हाँ, सो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम. चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम. देयरफॉर एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू x2 माइनस x1. फाइनल कॉन्सेंट्रेशन माइनस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1. फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम. x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1. अब बेटे अगर कॉन्सेंट्रेशन x1 x2 नहीं लेना है तो C1 C2. C1 इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, C2 फाइनल कॉन्सेंट्रेशन. तो C2 माइनस C1 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1. अब बेटे ये होता है डेल्टा x. तो x2 माइनस x1 दैट इज इक्वल टू डेल्टा x एंड T2 माइनस T1 दैट इज इक्वल टू डेल्टा t. डेल्टा बोले तो चेंज. तो डेल्टा x मीन्स चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय डेल्टा t मीन्स चेंज इन टाइम. सो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम. जैसा बेटे अपन ने dx बाय dt लिखे थे ना. हाँ, तो बेटे छोटा चेंज रहा तो d से लिखते और बेटे एवरेज रहा तो डेल्टा से. एवरेज रहा तो डेल्टा से और बेटे छोटा रहा तो d से. राइट. अब बेटे अगर dx नहीं लेना है तो ये हो जाएगा d डेल्टा c अपॉन डेल्टा t. नाउ व्हाट इज डेल्टा c? इट इज द चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन. व्हाट इज डेल्टा t? इट इज द चेंज इन टाइम. सो इट इज द एवरेज rate of reaction. So the change in concentration of reactant or product in a specific interval of time is called as average rate of reaction. And average rate of reaction is equal to change in concentration divided by change in time. Therefore average rate of reaction is equal to x2 minus x1 divided by T2 minus T1 or C2 minus C1 divided by T2 minus T1. Therefore average rate of reaction is equal to delta x by delta T और delta C by delta T. राइट. जैसा बेटे अपन ने अभी एग्जाम्पल में D यूज करे थे ना पीछे, तो बेटे वो स्मॉल चेंज रहता और डेल्टा बोले तो एवरेज. ठीक है. चलिए सेकेंड टाइप ऑफ rate of reaction, that is instantaneous. Instantaneous, instantaneous, instantaneous rate of reaction. इंस्टेंट समझता बेटा. इंस्टेंट बोले तो एक लम्हा, एक पल. जैसा मैं आपको एग्जांपल देता हूं. सपोज करो बेटा आप गाड़ी चला रहे. राइट. अब बेटे गाड़ी चलाते चलाते अचानक कोई सामने आ गया. क्या होता? अपन स्पीड से ब्रेक मारते ना. अब बेटा ब्रेक मारते स्पीड चेंज होती ना, मतलब इंस्टेंटली चेंज हो रहा ना. तो बेटा इस टाइप के चेंज को बोलते इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन. तो बेटा एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, एक पर्टिकुलर लम्हे पे जो बेटा चेंज होता उसे बोलते बेटा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन. So the change in concentration of reactant or product in a particular given instant
तो बेटे जब किसी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन चेंज होता है एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, एक पर्टिकुलर लम्हे पे, राइट। जैसा बेटे आप बाइक चला रहे 50 की स्पीड में, 100 की स्पीड में, जो भी होंगी, अचानक बेटा सामने स्पीड ब्रेकर आ गया, क्या करते हम? ब्रेक मारते। ब्रेक मारते बेटा हमारी स्पीड चेंज हो जाती, तो बेटा वो इंस्टेंटली चेंज होती ना, तो बेटा इस टाइप के रेट ऑफ रिएक्शन को बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। सो द चेंज इन concentration of reactant or product in a particular given instant is called as instantaneous rate of reaction। अब बेटा वैसा ही है, सेम। वहां 2 पॉइंट लिए थे ना, यहां पे अपन ने एवरेज निकालना था, यहां बेटा हम सिर्फ 1 पॉइंट लेंगे। सो द ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन द टाइम एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। We know that as the time is increases, concentration of reactant is decreases। जैसा जैसा बेटे टाइम इंक्रीज होगा तो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगा, तो बेटा ऐसी डिक्लाइन लाइन बनेगी। अब बेटा ये इसके ऊपर कोई भी एक पॉइंट ले लो, ले लिए। अब बेटा इसका परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, किस पर? टाइम पर। ये ड्रॉ करे बेटा, तो बेटा इस पर्टिकुलर टाइम पे जो कॉन्सेंट्रेशन चेंज होगा, बात समझ आ रही? दैट चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। देयरफॉर इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1। x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1 दैट इज इक्वल टू dx बाय dt। अब बेटे यहां पे डेल्टा नहीं लेना है, डेल्टा के बजाय बेटा सिर्फ dx, क्योंकि बेटे इंस्टेंटेनियस छोटा सा होता है, बात समझ आ रही? इसलिए बेटा डेल्टा x बाय डेल्टा t की जगह dx बाय dt। सो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1 दैट इज इक्वल टू dx बाय dt। एंड व्हेन द ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन दी time and concentration of reactant, then the decline line is obtained। तो बेटा जब ग्राफ प्लॉट करते हैं हम टाइम और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के बीच में, तो बेटा एक डिक्लाइन लाइन बनती है बेटा, और वो डिक्लाइन लाइन के ऊपर जब बेटा हम पॉइंट लेते, एक पर्टिकुलर पॉइंट, और बेटा उसका परपेंडिकुलर ड्रॉ करते टाइम के ऊपर, तो बेटा वो होता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। And the value of this instantaneous rate of reaction is equal to slope। तो बेटे इस पॉइंट का जो स्लोप आएगा, जो भी आएगा हर रिएक्शन के लिए अलग अलग होता है, हम बेटा फिक्स नहीं बोल सकते, हर रिएक्शन के लिए अलग अलग रहेगा स्लोप। जैसा बेटे हर रोड का स्लोप अलग अलग होता है, सेम होता है क्या? नहीं, वैसे बेटे हर रिएक्शन का स्लोप डिफरेंट होता है। सो वैल्यू ऑफ स्लोप इज इक्वल टू value of instantaneous rate of reaction, right? Therefore instantaneous rate of reaction means dx upon dt is equal to value of slope। इसलिए बेटा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू इक्वल होगी किसके? स्लोप के। किसका स्लोप बेटा? इस पॉइंट का स्लोप, समझा? सो इट इज द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। So the change in concentration of reactant or product in a particular given instant is called as instantaneous rate of reaction, and it is the explanation about the reaction। ये भी क्वेश्चन बेटा 2 मार्क के लिए एग्जाम्पल में आता है, इतना आपको उसमें लिखना पड़ेगा। ओके, एनी डिफिकल्टी अप टू हियर? टुडे वी विल stop here। Tomorrow we will continue with the next topic।